Assalamu alaikum everyone, this is Sabahat and here I am live in my evening session. In fact, evening से ज़्यादा अब तो रात हो गई है. Still, this is the live session and I'm supposed to do it, whatever the timings are. So let me just go on Facebook and check who's live so I can just start. वैसे भी 7:30 नहीं हुए, so I'll just go and check. Okay, so I know there's someone who's going to come and let's see क्या होता है. Okay. So who is this? Do let me know in the inbox who you are. If it's not Tanveer. Okay. So सबसे पहले तो happy Ramzan Mubarak, and today was the first roza here in Pakistan, and I hope everyone had a good roza. तो अभी तो शुरुआत है, इंशाल्लाह आगे देखें क्या क्या होता है. अच्छा, so what I plan to talk about, it's very obvious, and it's basically about, like, I'm just going to tell you some of the tips which I follow. And since Ramzan, it's all about you have to uh, maintain a balance. और balance में ये है कि like you're nourishing your soul through fasting, and you have to balance it with healthy food choices so you can nourish your body as well. So basically what I'm going to do is I'm going to give you some tips which I follow during the whole month of Ramzan, and it helps me a lot. और यह है कि balancing, it's an essential element in life, and you need, in fact everyone needs to have a balance in life. So it's not just about रमज़ान के महीने में ही आपने वो balance maintain करना है, बल्कि other than Ramzan, in your daily life you have to maintain that balance. And these are some of the tips which you can do in the month of Ramzan, and also in your regular routine you can follow these same tips, so they are always helpful. But before starting, let me just see who is here with me live. So let me just check. Okay. Okay, so whoever this is, please let me know in the comment box. Share your name, and do let me know where you are watching from. Are you from Pakistan or abroad, or from Lahore, Karachi, wherever you are from? Okay, I won't raise my voice, as you all know that after fasting you can't um, scream at the top of your lungs. Still, you need some some reservoir, and it takes time. Okay, so first of all, okay, there's someone at the top of my screen. Tayyib Tariq, thank you so much for joining in and watching this session live. Okay, first of all, जो मैं कहूँगी कि during the month of Ramzan, it's not just a physical challenge. So there are many challenges that are involved. It's a whole spiritual journey. So you're focusing on your spiritual journey, and then you're focusing on your physical journey as well. So whatever you're putting inside you, it's going to add as a fuel to your soul. But that is if the health choices or the food choices you are making are healthy. So you need to nourish your spirit. और वो आप किस तरीके से कर सकते हैं, वो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि you need to view your meals, which is going to be an opportunity of whatever you are putting inside your body, and how is it affecting you overall. So सबसे पहली चीज़ तो जो है जो आपने कंसिडर करनी है during the month of Ramzan, that is hydration. Now water intake, it is very important. अब why is it important? क्योंकि
आपका जो पूरा दिन होता है वो उस पानी पे और उस फूड चॉइसेस पे चलना होता है. एंड इफ़ यू आर डिहाइड्रेटेड, व्हाट वुड हैपन, आपके एनर्जी लेवल्स लो चले जाएंगे. यू वोंट बी इवन एबल टू do anything. Practically, you'll just, after having sari, you'll just get up in the morning, you'll feel lethargic, you'll feel down, you won't have the energy to do anything. So water intake, it's very healthy and it's very useful. So you, और जो healthy choices हैं उसमें like आप water के साथ you can always have milk, and then you can have other things. ये तो liquid के हवाले से है ना, but then लिक्विड में वाटर से ज़्यादा आप हाइड्रेटेड हो सकते हैं. प्लस आप अगर ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जो कि आपको थ्रू आउट द डे हाइड्रेटेड रख सकती हैं, लाइक अगर आप जो है एट सहरी टाइम, क्योंकि जो सहूर है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सहूर में आप जो कुछ खाएंगे, जो कुछ अपने बॉडी के अंदर डालेंगे, वही आपको थ्रू आउट द डे जो है कैरी फॉरवर्ड करेगा और आप अच्छे तरीके से अपना रोज़ा जो है ऑब्ज़र्व कर सकेंगे. उसमें आपने क्या करना है कि जो सहूर का टाइम है उसमें तो आपने पानी की इंटेक करनी है. देन आप साथ में जो है योगर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप डेट्स यूज़ कर सकते हैं. आप इस किस्म के जो है यानी जो लेंटिल्स हैं या ऐसे वेजिटेबल्स हैं जिसमें वाटर है, आप वो यूज़ कर सकते हैं. एंड देन जब आप अफ्तार करते हैं तो अफ्तार के बाद भी आपने अपने जो पानी की कमी होती है उसको पूरा करना होता है. सो अव्वल तो यानी वो लोग जो कि अफ्तार के टाइम जो है कोई कोल्ड ड्रिंक लेकर बैठ जाते हैं या कोई और फिजी ड्रिंक लेकर बैठ जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि भाई दिस इज़ रिप्लेसमेंट ऑफ वाटर या दिस इज़ अ लिक्विड. दैट डज़ नॉट वर्क, क्योंकि वो आपके जो है ना इट्स ओवरऑल वो आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा नहीं होता है एंड यू विल फील इट कॉजेज एसिडिटी. सो लाइक जिस तरह मैं जो हूँ, आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू कि व्हाट आई डू. Like in the month of Ramzan, I take like I can't drink water in its plain sense. So what I do is I put a bit of रूह अफ़ज़ा in it. सो रूह अफ़ज़ा से एक उसका टेस्ट बेहतर हो जाता है, बट ये है कि आई डोंट लाइक उसको बिल्कुल शीरा मैं नहीं बना लेती जस्ट टू हैव दैट एसेंस. क्योंकि वैसे अगर जो है रोज़े के बाद आप पानी पीते हो तो आपको पानी का जो है टेस्ट कड़वा फील होता है. So just to have some kind of taste or yeah essence in it, so I just put रूह अफ़ज़ा in it and I utilize that रूह अफ़ज़ा. So आप अफ्तार के टाइम पानी यानी रूह अफ़ज़ा पिएं, साथ में खजूर खाएं, क्योंकि ये हेल्दी चॉइस है. अच्छा, फिर उसके बाद जो है जब आप अफ्तार कर लेते हैं तो फिर उसके बाद जो टाइम है आपका सहरी तक का, उसमें आप 1-1-2-2 सिप करके जो है अपनी पानी की इंटेक को पूरा करते रहें. क्योंकि अगर वैसे देखा जाए तो 6 to 8 लीटर्स ऑफ वाटर इट इज़ सफिशेंट फॉर अ ह्यूमन बॉडी. सो आफ्टर आई होप आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है एंड इट्स रीजनेबल एंड इट्स नॉट लेस. जान मोहम्मद, वालेकुम अस्सलाम. अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन, थैंक यू सो मच. आई फील मच आई फील अ लॉट बेटर. और जैसे जैसे रमज़ान बढ़ेगा तो इंशाल्लाह आई फील अ लॉट बेटर. एंड जो बीमारी है दैट इज़ अ सदका ऑफ जिस्म एंड इट्स गोइंग टू गो अवे इवेंचुअली. सो जो फर्स्ट चीज़ आपने जो है माइंड में रखनी है, यू हैव टू कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड. एंड देन व्हाट यू कैन डू इज़ कि अगर आपको लगे कि आपकी पानी की इंटेक कम हो रही है या यू फील डिहाइड्रेटेड इन अ कपल ऑफ डेज, लाइक 2-3 रोज़ों के बाद आपको फील हो कि बहुत ज़्यादा आप जो है डिहाइड्रेट हो रहे हैं, तो यू कैन ऑलवेज टेक ORS. इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल. दैट इज़ अगर आप जो है खाने में कोई गड़बड़ कर रहे हैं और उसको बैलेंस नहीं कर रहे, तो आपको जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपको ORS से मिल जाएंगे. सो यू कैन ऑलवेज टेक दैट. देन देयर आर मेनी पीपल हु टेक टैंक ले लेते हैं. टैंक देन इफ़ यू आर कॉन्शियस, डाइट कॉन्शियस, या आपको शुगरी इंटेक का इशू है, तो देन टैंक भी इतना ज़्यादा नहीं लेना चाहिए. और जिस तरह आजकल खांसी बहुत ज़्यादा वायरल है, तो टैंक अगर आप उसमें ले रहे होंगे, रोज़ों में ले रहे होंगे, खांसी के साथ ले रहे होंगे, तो टार्टेरिक जो उसमें होगा वो अगेन आपके गले को लगेगा. सो ऑलवेज ट्राई टू कीप थिंग्स नॉर्मल एंड मोर टूवर्ड्स द ग्राउंड साइड एंड मोर टूवर्ड्स नेचर के करीब तरीन, जो ऑर्गेनिक फॉर्म में हो. ओके अच्छा, तैमूर हसन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन एंड वॉचिंग. ज़मीर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन. आज़ाद यूसुफ दी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग एंड वॉचिंग दिस सेशन. अच्छा, फिर उसके बाद जो है ना
जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपने सहूर में अपनी बैलेंस चॉइसेस रखनी है खाने पीने के हवाले से, क्योंकि दोज आर दी असेंशियल टाइम्स जिसमें जो है ना आपने देखना है कि भाई आपकी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है, और क्या चीज़ जो भी आप चीज़ खा रहे होंगे वो आपको पूरा दिन चलेगी रोज़ा गुजारने में। सो सहरी के टाइम मोस्टली जो है व्हाट आई थिंक इज़ कि ज़्यादा लोग जो है रोटी सालन इस टाइप की चीज़ें प्रेफर करते हैं, बट व्हाट आई फील इज़ लाइक इट्स माय ओन पर्सनल ऑब्जर्वेशन, या जो मेरा जो है टेम्परामेंट है, लाइक ओवर अ पीरियड ऑफ आई गेस अ फ्यू ईयर्स हो गए हैं इन सहरी, in fact during the whole month of Ramadan I do not eat सालन और रोटी। सो सालन, अब आप सोचेंगे भी सालन रोटी नहीं खाती तो फिर क्या खाती हैं। सो व्हाट आई डू इज़ कि आई मेक फ्रूट चाट इन अफ्तारी, एंड देन आई मेक दही भल्ले, और उसमें जो है क्या होता है कि भाई वही जो है ना जो होता है 1 बाउल आई कंज्यूम दैट इन सैरी एज वेल। सो उसमें वो जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है दही की, वाटर की रिक्वायरमेंट, प्लस जो है फ्रूट चाट में जो फ्रूट्स होते हैं उनमें अपनी नेचुरल शुगर्स होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं, असेंशियल मिनरल्स होते हैं, एंड देन अगर आप जो है खजूर भी उसके साथ खा रहे हैं तो वो आपके जो असेंशियल न्यूट्रिशंस जो आपकी बॉडी को रिक्वायर होते हैं वो अगर आप जस्ट कंज्यूम कर लेते हैं, 1 बाउल भी कर लेते हैं, तो दैट इज़ सफिशेंट, आपका रोज़ा बहुत अच्छे तरीके से गुजर जाता है। सो दैट इज़ व्हाट आई डू। सो यू नीड टू हैव अ बैलेंस सहूर। अगर जो है से आप जो है फ्रूट चाट नहीं खा सकते, या अगर आप जो है से दही भी नहीं ले सकते, या कुछ और भी नहीं कर सकते, सो आप उसकी जगह क्या कर सकते हैं, देन यू कैन ऑलवेज यूज़ ब्राउन राइस आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर होल ग्रेन्स यूज़ कर सकते हैं, ओट्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि देन जो प्रोटीन रिच फूड्स हैं जिस तरह एग्स हो गया, योगर्ट हो गया, या लीन मीट हो गया, जो कि आपको जो है एक फुली फुल रख सकें, और आप जो है ना खुद भी फुल फील कर सकें, रादर देन कि आप कहें कि भाई पूरा जो है रोज़े में जो भूख लगती रही और पेट नहीं भरा हुआ। सो अगर इस टाइप के आप फूड्स की इंटेक करते हैं तो आपको जो है ना फुलफिलिंग रहेंगे आप, and you won't feel hungry. And then again what I have observed over the years, and एक ह्यूमन मैकेनिज्म होता है, जब आप बच्चे होते हैं तो आपको जो है ज़्यादा भूख लगती है एंड यू इंटेंड टू ईट मोर, बट एज यू ग्रो ओल्डर तो आपका जो मैकेनिज्म होता है, जो मेटाबॉलिज्म होता है वो स्लो होता जाता है। सो जब आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है तो आपके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो भी आपको बहुत ज़्यादा लगती है। सो अगर आप जो है वो फुल रिक्वायरमेंट भी ना खा रहे हो या ना इनटेक कर रहे हो, तो जो थोड़ी भी आप कर रहे हो तो दैट इज़ ऑल्सो सफिशेंट फॉर यू। बट देन अगेन देखें जो रमज़ान है, जो रोज़ा है, वो एक हमें जो है कंप्लीट कोर्स सिखाता है। उसमें यानी एक जो फिज़िकल चैलेंज है, एंड इट्स अ जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी भी है, फिज़िकल जर्नी भी है। स्पिरिचुअल जर्नी में इट टीचेस यू कि आपने किस तरह एम्पैथ बनना है, किस तरह आपने ग्रैटिट्यूड शो करना है, किस तरह आपने शुक्र अदा करना है जो कुछ अल्लाह मियाँ ने आपको दिया हुआ है, आप उसका शुक्र अदा करें, ना कि जो है आप ना शुक्रे हों। सो वट एवर यू आर टेकिंग इन, आप शुक्र गुजारी के साथ जो है उसको खाएं, उसको इंजॉय करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, और अपना दिन वो रोज़ा गुजारें। क्योंकि इन रमज़ान आपने ये चीज़ भी देखनी है कि जिस जगह आप हैं देर आर मैनी हु माइट नॉट हैव दिस लग्जरी, देर आर मैनी जिनको शायद एक वक्त का भी ना मिलता हो। सो अल्लाह मियाँ का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए, और अगर अल्लाह ने आपको ज़रूरत से ज़्यादा दिया हुआ है तो देन ऑलवेज़ हेल्प दोज जिनके पास नहीं है। सो इसमें आप जो है क्या कर सकते हैं कि जब आप जो है अफ्तार करते हैं तो ऑलवेज़ ट्राई टू शेयर योर अफ्तार विद पीपल, चाहे वो ऐसे लोग आपके दस्तरखान पे हों या आपके नेबरहुड में हों, या जिस दिन अफ्तार का टाइम होता है यू कैन ऑलवेज गो आउट ऑफ योर होम एंड सी कि भाई, क्योंकि देर आर मेनी पीपल हु आर सिटिंग ऑन द फुटपाथ, या आपके जो है घर के बाहर जो है इर्द गिर्द आपको नज़र आते हैं, हु माइट नॉट बी वोकल, या सफ़ेद पोश लोग होंगे, दे might not even ask you for aftar ya anything. So you have to use your mind, you have to open your heart, and you have to offer them food as well. So जब आप जो है अपना खाना लोगों के साथ शेयर करेंगे, now this is not just about रमज़ान में तो खैर बरकतें और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं जब आप
खुले दिल का मुजाहिरा करते हैं तो अल्लाह मियाँ भी आपके जो रिस्क है उसमें बरकत डालते हैं. सो इफ़ यू गो आउट ऑफ योर हाउस एंड you see people who are loitering here and there, you can always ask offer them food. और आप देखेंगे आपके रिस्क में कितना इजाफा होता है. अच्छा, देन उसके बाद जो है आपने एक और जो चीज़ करनी होती है कि जो फास्ट होता है यू हैव टू ब्रेक इट माइंडफुली. अब वो माइंडफुली इसी तरीके से हो सकता है कि यू हैव टू बी कॉन्शियस कि आप अपने अंदर जो डाल रहे हैं इज़ इट हेल्दी या इज़ इट जंक या इज़ इट नॉन हेल्दी. क्योंकि अक्सर जो है जो रमज़ान होता है उसमें मैं देखती हूँ कि लोग बहुत ज़्यादा जो है ना फ्राइड आइटम्स जो है बनाते हैं, समोसे पकोड़े ये चीज़ें बनाते हैं जो शायद वो पूरा साल ना भी बनाते हो, पर रमज़ान में जो है ये चीज़ें बहुत कॉमन हो जाती हैं और प्रैक्टिकली हर घर में हर दूसरे दिन बन रही होती है. बट देन अगेन ये जो चीज़ें होती हैं फ्राइड जो आइटम्स होते हैं वो तो आम रूटीन में भी जो है इट्स नॉट हेल्दी फॉर यू, इट्स नॉट हेल्दी फॉर द हार्ट, इट्स नॉट हेल्दी फॉर पीपल हु हैव हाई कोलेस्ट्रॉल. सो आपने ये चीज़ें जो है मिनिमम लेवल तक रखनी होती है. यानी यू कैन ट्रीट इट एज अ लग्जरी. वंस इन अ ब्लू मून आप बना लें, कभी जो है दिल करता है तो एक या दो पकोड़े बना लें, बट डोंट मेक इट अ हैबिट. क्योंकि कोई भी चीज़ जाती में हो या कोई भी चीज़ जो है आउट ऑफ द ऑर्डिनरी हो तो दैट ऑलवेज रिजल्ट्स इन समथिंग बैड. सो अब आपने अपनी सेहत का खुद ख्याल रखना है. क्योंकि देन एट द एंड ऑफ द डे यू वुड बी सेइंग ओ मुंह पे पिंपल हो गए, स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो गई, हज़म नहीं हो रहा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है, एंड देन यू विल एंड अप गोइंग टू द डॉक्टर्स. सो ये चीज़ें अवॉइड करनी है. देन जिस तरीके से बच्चे होते हैं घर में उनको जो है ज़्यादा पिज़्ज़ास पसंद होते हैं, बर्गर्स पसंद होते हैं. सो व्हाट यू कैन डू इज़ रमज़ान में वंस इन 15 days होता ही वैसे तो 30 days का रमज़ान होता है. तो ये है कि आप एक लिमिटेड अमाउंट रख लें और उसमें भी ये है कि हर चीज़ जो है फ्राइड ना हो या बाहर से ना आ रही हो. बट यू कैन डू इज़ आप एक चीज़ अगर हेल्दी तौर पे हाइजीनिक तौर पे घर पे तैयार कर सकते हैं तो पिज़्ज़ा घर पे बना लें. इवन बर्गर्स भी आप घर पे बना सकते हैं. सो यू डोंट हैव टू एक्सपोज योर चिल्ड्रन टू एक्स्ट्रा जंक या फ्राइड आइटम्स. तो आप घर पे थोड़ा थोड़ा कर सकती हैं. you have to be moderate. So whatever you are doing in the month of Ramadan या after Ramadan या in your regular days उसमें moderation होनी चाहिए, and that is what our religion teaches us, we need to be moderate. अच्छा, then mindfully जो है you break your fast and then obviously आप जो है फास्ट जब अफ्तार कर रहे होते हैं तब भी जो है आपका फोकस यही होता है कि आप प्रोटीन्स ले रहे हो, हेल्दी जो है ईटिंग कर रहे हो, वेजिटेबल्स ले रहे हो, ग्रेन्स ले रहे हो, जो चीज़ें जो है आपकी बॉडी के लिए अच्छी हैं, नॉट ऑन द डेरोगेटरी साइड. और देन जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि आप जिस वक्त यानी कोई भी डाइट ऑब्जर्व कर रहे होते हो, यानी आई एम नॉट सेइंग कि भैया आप जो है डाइट पे चले जाओ. इट्स दैट कि यू नो अबाउट योर बॉडी कि आपके बॉडी में क्या चीज़ कितनी रिक्वायरमेंट है उसकी और कितनी चीज़ जानी चाहिए. ज़मीर वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन. आई थिंक आपका मैसेज रिपीट हो रहा है या मे बी आई हैव जस्ट मिस्ड इट. ओके, सो आपने देखना होता है कि भाई आपकी बॉडी में क्या जा रहा है एंड इज़ दैट थिंग सूटिंग यू एज वेल. क्योंकि देखिए जब आप जो है एज करते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है और उसमें जो चीज़ें जो है आप से जिस तरह मैंने आपको बताया कि जब आप बच्चे होते हो तो आपकी बॉडी जो है और तरीके से वर्क करती है. हो सकता है उस टाइम पे आप जो है फ्राइड आइटम्स भी डाल लें, पिज़्ज़ास भी डाल लें, बर्गर्स भी डाल लें, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो डाल सकते हैं, कैंडीज, चॉकलेट्स, फिजी ड्रिंक्स, ये सब कुछ आप एज अ चाइल्ड डाल सकते हैं. क्योंकि उस टाइम पे आपकी बॉडी उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकती है, उनको डाइजेस्ट कर सकती है. बट एज यू ग्रो ओल्ड, लाइक मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरी जो बॉडी है इट डज़ नॉट टेक दिस थिंग्स इन अ वेरी गुड एंड पॉजिटिव मैनर. क्योंकि आई कैन नॉट ईट दीज थिंग्स, इनफैक्ट आई कैन नॉट डाइजेस्ट दीज थिंग्स. कि अगर मैं जो हूँ कहती हूँ कि अच्छा जी चलो मैं पिज़्ज़ा खा लेती हूँ, एक स्लाइस पिज़्ज़ा का खा लेती हूँ, पर वो मुझे हज़म नहीं होती. सो उसके लिए मैंने क्या करना है, उसके लिए आई हैव टू लुक फॉर अल्टरनेटिव्स विच आर हेल्दी एंड विच आर ईजिली डाइजेस्टेबल बाय माई बॉडी, या मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम उसको डाइजेस्ट कर ले. सो बेस्ट इज़ कि आई कीप माई सेल्फ क्लोज टू नेचर, क्लोज टू ऑर्गेनिक फूड. ऐसी चीज़ यूटिलाइज़ करूँ जो कि हज़म करने में भी आसान हो और मज़ा भी आए. एंड इट्स ऑलवेज़ बेस्ट कि आप जो है होम कुकिंग की तरफ आएँ और
जो खुद आप बनाते हैं वो चीज़ें जो है ज़्यादा हेल्दी होती हैं, आप उसको इजीली डाइजेस्ट भी कर सकते हैं और वो आपको स्वाद भी देती हैं। एंड रमज़ान आई थिंक इट्स द बेस्ट महीना एंड इट्स द आई वुड से बेस्ट मौका होता है जब आप जो है अपनी जो culinary स्किल्स हैं उनको जो है ना क्या कर सकते हैं आप जो है, यानी यू कैन ऑलवेज ट्राई एंड एक्सपेरिमेंट न्यू थिंग। तो अवतार में जो टिपिकल चीज़ें हैं उनकी बजाय आप कोई चीज़ नहीं बना लें, कोई चीज़ एक्सपेरिमेंट कर लें, सो यू ऑलवेज इन्जॉय दैट पीरियड एज वेल। और प्लस उसमें बरकत भी पड़ती है और सवाब भी मिलता है, क्योंकि अगर आप जो है रोज़ेदारों को अफ्तारी करवा रहे हैं और घर वालों को अफ्तारी करवा रहे हैं, ख़ुद भी आपका रोज़ा है, तो आपकी जो है अल्लाह मियाँ जो है आपको सवाब देते हैं उस चीज़ का। अच्छा देन इसमें और क्या चीज़ें आ सकती हैं, इसमें इसके अलावा ये है कि भाई सोशल सपोर्ट जो है इट्स आल्सो वेरी नेसेसरी। चाहे घर में जो है आपके फैमिली वाले आपको सपोर्ट करें, क्योंकि देखिए रोज़ा इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि भाई देयर इज़ वन पर्सन हु इज़ डूइंग एवरीथिंग इन द किचन। सो जो होल फैमिली होती है, सिंस द होल फैमिली, चाहे आप सिंगल फैमिली में रह रहे हैं या जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, तो एवरी वन इज़ इंक्लूडेड इन दैट ऑब्जर्विंग रोज़ा। सो ये है कि देन एवरी वन कम्स एंड हेल्प्स यू। सो इस तरीके से एक सोशल सपोर्ट बनती है, रादर कि जो है आप किसी एक बंदे को या बंदी को किचन में जो है डाल दें और आप कहें कि भाई अब जो है रोज़े का टाइम है तो अब आपने ये सारा बनाना है, सो एंड यू हैव टू सर्व एवरी वन। अलमदार, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। जब आप जो है एक दूसरे की हेल्प करती हैं रोज़े के महीने में भी, एंड आई वुड से आफ्टर रोज़ास भी, तो इट ऑलवेज हेल्प एंड किसी एक बंदे पे बर्डन नहीं होता, एवरी वन इज़ इन इट टुगेदर। सिंस जो है यानी वी ऑलवेज फोकस ऑन कि भाई जो हैप्पी फैमिलीज़ होती हैं उसमें हर एक दूसरे की मदद करता है, तो सेम गोस इन द मंथ ऑफ रमज़ान टू, कि एवरी वन नीड्स टू हेल्प एवरी वन एंड ईच एंड अदर। तो जब आप इस तरीके से करते हैं तो यू विल सी कि भैया आपका जो रमज़ान है वो कितना अच्छा गुजरता है। ओके, सो दीज वर सम ऑफ द टिप्स जो कि जो है आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू, एंड सिंस जो है आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट दीज टिप्स, एंड आई ट्राई कि जो रमज़ान का महीना है वो जो है अदर देन आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है जिसमें आप जो है कुरान पाक जो है पढ़ रहे हैं, उसकी जो है उसे रिसाइट कर रहे हैं, उसकी ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं, एंड यू आर ट्राइंग टू गेन मोर एंड मोर ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह। इन द सेम वे आपने अपनी बॉडी की भी टेक केयर करनी है, स्पिरिट के तो और सोल की तो टेक केयर हो रही है आपकी, जो आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं रोज़ा को, और जिस मुशक्क़त से आप गुजरे होती हैं ड्यूरिंग द होल पीरियड। सो सिमिलरली आपने जो है अपनी बॉडी की भी टेक केयर करनी है, और जब आपके डेली रूटीन में हेल्दी फूड चॉइसेस होंगी तो आप देखेंगे कि भाई एट द एंड ऑफ द रमज़ान, so you will feel good. You will not only feel like via your soul, but in fact via your body you will also feel good. And you might have observed, like I have been observing this for the past many years, जब से रमज़ान आ रहा है, कि मैं जो हूँ like जो चीज़ें मैं जो हूँ पिछले 3-4 सालों से रमज़ान में कर रही हूँ, इट्स द सेम थिंग, और एंड आई हैवंट चेंज दैट। तो वही मेरी जो है फूड चॉइसेस हैं और वही मैं फॉलो कर रही हूँ जब से जो है, यानी पिछले 3-4 सालों से जो मैं फॉलो कर रही हूँ, एंड आई फील कि भाई यू फील वेरी हेल्दी एंड यू फील रियली गुड। अच्छा ठीक है जान मोहम्मद, आप प्लीज़ जाइए, आप अपनी अफ्तारी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आप जब अफ्तारी कर लेंगे देन यू कैन वॉच द होल सेशन। वैसे ये तकरीबन ख़त्म हो गया। एडवोकेट अरसलान झंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन एंड वॉचिंग। सो दीज आर द टिप्स जो कि मैं फॉलो करती हूँ, एंड आई वॉन्टेड टू शेयर दीज टिप्स विद यू, ताकि वो लोग जो कि रोज़े रख रहे हैं एंड दोज हु हैव दीज डिफ़िकल्टीज़ इन मेकिंग डिसीजंस कि भाई अफ्तारी के टाइम क्या चीज़ खाई जाए, क्या चीज़ ना खाई जाए, और बॉडी के लिए क्या हेल्दी है, और हम अपने जो है सोल को किस तरह नरिश कर सकते हैं और बॉडी को किस तरह नरिश कर सकते हैं। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स। अगर आप जो है ये सारी चीज़ें नहीं कुछ भी फॉलो कर रहे हों, कुछ फॉलो कर रहे हों, तो यू विल फील अ ग्रेट डिफरेंस इन योर overall body and overall mindset.
क्योंकि ये चीज़ें फॉलो करने के लिए यू नीड टू हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट, यू नीड टू हैव अ ग्रोथ माइंडसेट, यू नीड टू सी थिंग्स बियॉन्ड द ऑर्डिनरी, ठीक है। यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स कि भाई अगर मैं जो हूँ अगर मैं ये सोचती हूँ कि भाई आज अफ्तारी में मैं पिज़्ज़ा खा लेती हूँ, तो उसके जो है आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। आई हैव टू थिंक अबाउट दोज आफ्टर इफ़ेक्ट्स, आई हैव टू सी कि भाई वो जो मैं पिज़्ज़ा अपने अंदर डाल रही हूँ उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, उसमें क्या वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होंगे जो कि शायद मुझे जो है सब्ज़ी दाल में मिल जाए, या उसमें जो है वो एक्स्ट्रा सॉल्ट ना हो जो कि मेरी बॉडी के लिए जो है डेंजरस है। यू नो, these are the healthy choices and these are the conscious choices you need to make when it comes to leading a healthy life. अब वो लोग यानी हमारे जो अबाव अजदाद थे, स्टिल उनमें से बहुत से ऐसे हैं हु आर स्टिल लिविंग। वाई आर दे लिविंग? क्योंकि दे ऑलवेज हैड हेल्दी फूड चॉइसेस, दे वर ऑलवेज मोर प्रोन टूवर्ड्स नेचर, मोर प्रोन टूवर्ड्स ऑर्गेनिक ईटिंग। सो अगर मैं जो हूँ अपना टाइम देखती हूँ, हमारा जो टाइम था अगेन उसमें भी मिलावट काफ़ी हद तक आ गई थी, बट अब जो हमारी जनरेशन है उस जनरेशन में तो है ही टोटल मिलावट। हमारे टाइम में लाइक आई रिमेंबर व्हेन आई वाज अ चाइल्ड वी डिड नॉट यूज टू हैव KNN प्रोडक्ट्स या सब रोज़ो या डॉन के, सो वो फ्राइड आइटम्स तो हमारे पास नहीं थे। बट नाउ चूँकि द डिजिटल स्पेस हैज़ इंक्रीज, देयर इज सो मच टेक्नोलॉजी, देयर सो मच फूड इंडस्ट्री हैज़ डेवलप सो मच, एंड हर तरह का जो है ना सोल्यूशन आ गया है। लाइक व्हेन आई वाज यंग आई रिमेंबर, या व्हेन आई डिड माई मेट्रिकुलेशन, I remember we didn't have used to have those garlic and ginger paste. We used to वो खुद जो है छीलते थे, और 14 तबक रोशन हो जाते थे जब लहसुन जो है छीलना पड़ता था, और देन फिर उसकी स्मेल भी हाथ से नहीं जाती। देन जिस तरीके से अब तो जो है यानी एवरीथिंग इज़ पैक्ड एंड प्रिजर्व्ड इन बॉटल्स, सो आप वही जो है बॉटल्स लेते हो प्रेजर्वेटिव्स वाली, वही जो है आप मसाले इस्तेमाल करते हो। बट देन उसका क्या नतीजा है? नूरीन शाह, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन एंड वॉचिंग दिस सेशन। सो उसका क्या नतीजा है? उसका नतीजा ये है कि जो आर्टिफिशियलिटी है, जो प्रेजर्वेटिव्स हैं, प्रेजर्वेटिव्स आर ऑलवेज बैड फॉर यू। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि भाई आपको जो चीज़ करने में मुश्किलात पेश आ रही है, बट येस आपको वो मुश्किलें पेश आएंगी वो चीज़ें करने में, कुकिंग करने में। कुकिंग इज़ नॉट एन ईजी जॉब। अगर मैं ये कहूँ कि हाँ भी कुकिंग इज़ ईजी क्विक टू डू जॉब है, इट्स नॉट। सो दैट्स वाई बहुत से लोग हैं, बहुत सी ख़वातीन हैं, दे डोंट लाइक कुकिंग, क्योंकि उसमें जो है तगदो काफ़ी करनी पड़ती है। आपने जो है प्याज खुद छीलने होते हैं, आपने लहसुन खुद छील के काटना होता है, अदरक खुद करनी होती है। देन टमाटर, टमाटर में जो है मोस्टली मैं देखती हूँ लोग जो है छिलकों समेत जो है टमाटर डाल देती हैं। अव्वल तो छिलकों समेत यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्रॉम मेन हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू इट्स द छिलका इज़ नॉट गुड, एंड देन फ्रॉम कुकिंग पॉइंट ऑफ व्यू जो छिलका होता है वो हार्ड होता है, और टमाटर जो है उस छिलके के साथ गलता नहीं है। सो ऑलवेज shred it off the skin of the tomato and then put it in your gravy. So वो जो है ग्रेवी का भी अच्छा जायका आता है। बट देन अगेन ये सब चीज़ें जो है तगो दो मांगती हैं, एंड यू हैव टू डू इट इफ़ यू वांट टू see your family have a healthy life, and you want to आप खुद भी ऑब्जर्व करते हैं हेल्थी ईटिंग, एंड यू वांट द सेम फॉर योर फैमिली, तो आपको ये तगोदो करनी पड़नी है। एंड देन इस तगोदो में योर लाइफ पार्टनर कैन ऑलवेज हेल्प यू, या जो आपके फैमिली वाले हैं, इफ़ यू आर लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम, सो यू कैन ऑलवेज डिवाइड द टास्क एंड be helpful to each another. But then if you are a single family and you don't have any helping aid, then you can always ask if your children are adults, जब वो उस एज में है जब वो आपकी मदद कर सकते हैं, यू कैन आस्क देम टू डू दोज थिंग्स फॉर यू। लाइक आई नो माई सन ही लाइक्स टू डू कुकिंग, सो मैं जो हूँ, एंड ही इज़ आई वुड से ही इज़ अ वेरी फाइन शेफ़ इवन एट अ यंग एज। बट ये है कि आई डू आस्क हिम कि भाई बेटा मुझे जो है ये चीज़ कर दो, एंड ही डज़ इट ब्यूटिफुली। सो बट ये है कि जहाँ तक मेरे से होता है मैं वो चीज़ें खुद कर लेती हूँ अपने एंड पे, एंड यू कैन ऑलवेज हेल्प आस्क योर लाइफ पार्टनर एज वेल। सो जब सारी जो है फैमिली मिल के कोई काम कर रही होती है, तो वो आप देखेंगे उस चीज़ में जायका भी होगा, बरकत भी होगी, एंड यू विल ओवरऑल feel like a positive and healthy family as well. So this is what I wanted to share, and this was all regarding today's topic which was under discussion.
So inshallah tomorrow I'll come again with another unique topic, some personal insights which I would like to share with you. And now let me see if there's anyone who wants to come live. देखो ऊपर आते हैं, कई लोग आते हैं ऑन कैमरा, बट जैसे ही जो है मैं कहती हूँ कि मैं जो किसी को ब्रिंग करती हूँ तो ऑफ कैमरा चले जाते हैं. ए के खान, वालेकुम अस्सलाम, आई होप यू आर फाइन. Now let me see. Okay, I'll just see there is one person who's at the top of my screen. I'll just try to bring this person. And मेरा ख्याल है मैंने कल भी उन्हें invite किया, but he declined, so I'll just, if he doesn't decline, I'll just bring him. And then if any one of you have any suggestions regarding today's topic, so do pour in your suggestions, do pour in your comments, so I know what to think about things. What do you think about health choices? Yeah, what do you think about how can you nourish your soul? Yeah, if you have any ideas or comments regarding the tips I have given you. Okay, so there's one person who is joining in. Let's see who this is. Okay. And also let me know if this time is okay with you people, because I think 7:30 is a good time. Like 6:15, 6:20 तक जो है रोजा पार हो जाता है, and then you have plenty of time to come live and have these sessions. Okay, so the connection was failed. There's someone else. I'll just try to bring this person as well. Okay, I couldn't add him because he just left. He just went offline. So it's okay. Um, it's totally okay. So if there's no one who wants to come live on camera, I can just wind up this session, and tomorrow I'll come back. And in the meantime, अगर किसी का कोई comment है, तो do let me know. Let me see अगर मैंने किसी का comment miss नहीं कर दिया तो. Yes, I haven't missed anyone's comment. Okay. So till tomorrow, bye bye and take care. Allah Hafiz.